Hello dear aspirants, I am Pratiksha Chauhan. Welcome to Arpita Sharma Classes, a platform where you get quality classes free of cost, covering important subjects from the perspective of UPSC. We are going to cover art and culture topic, that is Indian art forms, Indian paintings, classical dance forms, folk dances, classical music, puppetry and martial arts. Before we start, here is a small announcement for all of you. Unacademy Combat, the most competitive gamified UPSC CSC battle held on May 16, 2021, 11 am. Enroll now for free. Link is in the description box below the video. Use code ARPITA10 to unlock the Plus experience for free and start learning from the best. How to enroll in the quizzes for free? Download the Unacademy Learning app. Register or sign in on the app. Select the goal as UPSC CSC. Click on the link above and then on Enroll Now. When prompted, please enter the code ARPITA10 to activate your free plan. Unacademy Combat is a battle to challenge thousands of learners and win exciting rewards prizes. It's India's biggest weekly competition for UPSC CSC. Extensive quizzes with 6 rounds of 10 questions each from economy, polity, environment, science and tech, geography, history. The questions are curated by Unacademy's best UPSC CSC educators. You will see a real-time leaderboard after every question to instantly know the answer you got right and know where you stand among other learners in India. Detailed video solution after every contest so that you get it right the next time. Don't miss this opportunity. Hurry up, enroll now. Today we will discuss about Indian art forms, especially about Indian paintings, classical dance forms, folk dances, classical music, puppetry and martial arts. We will discuss all this in brief. So let us begin with this topic. First topic is Indian paintings. You can see this picture. आप ये फोटो देख सकते हैं कि ये फोटो जो है गॉडेस सरस्वती की है. किसने बनाई थी? राजा रवि वर्मा. It was made by Raja Ravi Verma, who was the father of modern painting. So who was the known father of modern painting? Raja Ravi Verma. Who was the modern painter known as? M.F. Hussain. First painting is folk paintings of India, that is Pathachitra. It is a traditional painting of Orissa. In this, no use of pencil or charcoal, means इसमें ना ही पेंसिल का यूज होता है और ना ही चारकोल का, और ये ट्रेडिशनल पेंटिंग है ओडिशा की. सो हेयर ब्रश इज यूज टू ड्रॉ द आउटलाइंस, मीन्स ब्रश यहाँ पे यूज होता है. तो इसकी मेन थीम्स कौन सी हैं? द मेन थीम्स आर जगन्नाथ एंड वैष्णवा cult. Now comes the next is Sora paintings. This painting is also of Orissa. ये painting भी Orissa की है. This is made by Sora tribe of Orissa. ये similar होती है worldly paintings से. This is similar to worldly paintings. So it is essentially a war mural painting and is ritualistic. Wall mural painting is like painted on permanent surface. ये जो वॉल मुलाल पेंटिंग्स होती हैं इन्हें परमानेंट सरफेस पे पेंट किया जाता है. नाउ कम्स द वर्ल्डी पेंटिंग्स. These worldlies are the indigenous people that occupy mainly the Gujarat and Maharashtra border. Means जो वर्ल्डी होते हैं वो एक इंडिजीनियस पीपल होते हैं जो कि स्पेशली कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात एंड महाराष्ट्र बॉर्डर में. They are especially found in Gujarat and Maharashtra border. So it has close resemblance to mural paintings of Bhimbetka, Madhya Pradesh. Means ये जो resemblance देता है most closely जो होता है वो mural painting जो भीमबेटका की है मध्य प्रदेश में जो located है. ये mainly walls पे की जाती है. This is done mainly on walls. So these ritualistic paintings have a main theme which is a motif of chaukhut or chalk. Means जो ये ritualistic
पेंटिंग होती है उसकी मेन थीम कहाँ पे होती है? चौखट या चौक पे। Now next painting is Pithora painting. It is done by some tribal communities of Gujarat and Madhya Pradesh. ये ट्राइबल कम्युनिटीज जो गुजरात और मध्य प्रदेश की हैं उनके द्वारा किया जाता है। दिस इज डन मेनली बाय गुजरात एंड मध्य प्रदेश ट्राइबल कम्युनिटी। इस थीम इज डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स स्पेशली हॉर्सेस। ये एनिमल्स को डिपिक्ट करता है जो कि मेनली जो होते हैं इसमें हॉर्सेस का यूज होता है पेंटिंग में। नाउ कम्स द थंका पेंटिंग। ये जो है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख रीजन और अरुणाचल प्रदेश में मेनली पाई जाती है। इट इज मेनली फाउंड इन दिस प्लेसेस। द थीम ऑफ दिस इज बुद्धा एनलाइटमेंट। ओके, मीन्स used as a medium of reservoirs that evoke the highest ideal of Buddhism. Means it shows the life of Buddha. ओके, ये लाइफ ऑफ बुद्धा को बताता है, बुद्धा के व्यक्तित्व को बताता है। सो थंका इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज लाइफ ऑफ बुद्धा, एब्स्ट्रैक्ट व्हील ऑफ लाइफ, ऑफरिंग्स टू द डीटीज और मेडिटेशन। ओके, now next painting is Madhubani painting. It is done by women of villages of Madhubani town. So it is called Mithila paintings. Where it is found? Mithila, it is in Bihar. So the theme of this painting is religious motifs of the Hindus. Means religious god can be seen in this painting. So symbolic paintings होती हैं. So example like fish depicts good luck and fertility. Like if a fish is seen in the painting, then it depicts good luck and fertility. So it is painted on walls. So with the base of cow dung. Okay, rice paste and vegetable colors are used for paintings. Now comes the kalamkari paintings. These are sharp pointed pen made of bamboo used to regulate the flow of colors. In this painting, sharp pointed pen is used which is made of bamboo. एक sharp pointed pen use होता है जो कि bamboo से बना होता है, that is used to regulate the flow of colors. ये जो flow of colors को है उसको regulate करता है ये pen. The base is from cotton fabric and colors is vegetables. Dyes are used as a colors. So pen is soaked in a mixture of fermented jaggery and water. जो पेन होता है वो कौन से मिक्सचर में होता है? Jaggery is known as गुड़. You have known it, that is jaggery and water. गुड़ और पानी को मिलाया जाता है जो उसका पेन जिसमें सोक होता है, भिगाया जाता है जिसमें पेन को। अब आती है थीम which is religious based और Hindu mythology. Where the main center? That is Srikalahasti and Machilipatnam. These places are in Andhra Pradesh. Now comes mural paintings of India. Okay, these are done on wall or solid structure. इन्हें wall या फिर किसी एक मजबूत structure, solid structure पे किया जाता है। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? Which places? Ajanta, which is in Maharashtra, Aramalai Cave, which is in Tamil Nadu, Ravan Chhaya rock shelter, which is in Odisha, Bagh caves in Madhya Pradesh, Sidnavarsnal caves, that in Tamil Nadu, Kailash Nath temple, that is in Ellora, Maharashtra. Please remember these places and even where it is located, as UPSC has a trend to ask with places and the name of the caves also. Okay, and the theme of these mural paintings are Hindu, Buddhism and Jainism. Now comes petroglyphs. These are prehistoric paintings. जो पेट्रोग्लिफ्स पेंटिंग्स होती हैं उन्हें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में आती हैं। ओके, सो ये जो पेंटिंग होती हैं वो कहाँ एग्जीक्यूट की जाती हैं, वो कहाँ बनाई जाती हैं? दैट इज ऑन रॉक एंड रॉक इंग्रेविंग्स. These paintings are executed on rock and rock engravings. So first set of prehistoric painting was discovered in Bhimbetka caves, that is in Madhya Pradesh. जो पहली prehistoric painting थी वो भिम्बेटका केव्स मध्य प्रदेश में बनाई गई थी या डिस्कवर की गई थी. This can be your UPSC question.
So they have been called as zoo rock shelter painting. These paintings are also known as zoo rock shelter paintings. These painting depicts animals like bison, bears, tiger, etc. Now next painting is wall paintings. That first came is Ajanta cave paintings. It is situated in Aurangabad, Maharashtra. Okay, Aurangabad, Maharashtra, Ajanta cave paintings located हैं. So from 4th to 8th century AD, under different rulers, it was found. Okay. Now the theme of the painting is stories from the life of Buddha and Jatakas. Okay, so it depicts the Jatakas story and even the life of Buddha, which elaborate decorative patterns of flora and fauna also. मतलब ये decorative पैटर्न भी फॉलो करते हैं, जैसे फ्लोरा और फौना को, मतलब प्लांट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा इज यूज्ड हियर. ओके. Now medium of painting is, which type of colors are used and how they are used. Mineral and vegetable dyes are used for paintings. Mineral and vegetable dyes are used for paintings. Now tempera style use of pigments. So it is also known as fresco paintings. Now next painting is Ellora cave paintings. It is situated in Maharashtra. So mural paintings is found in 5 caves of Ellora cave painting. What will the theme of this painting? All 3 religion: Buddhism, Jainism, Hinduism. Okay. So Kailasha temple is also here. Okay. Now comes the Aramalai cave paintings. These are situated in Vellore district. Where is Vellore district? This is in Tamil Nadu. What is the theme? Jainism, tales of Astikas, Palakas, that they are the deities protecting 8 corners. जो टेल्स ऑफ अस्टिका पालकास है, जो ये होती हैं वो एक डीटीज, मतलब द प्रेयर्स जो डिस्पल्स होते हैं, दो दे आर, वो प्रोटेक्ट करते हैं 8 कॉर्नर्स को. ओके. सो दीज पेंटिंग्स आर डन ऑन वॉल और रूफ. नाउ कम्स द रावण छाया रॉक शेल्टर. Okay, this is found. What is the location of this? Kinjor district, which is in Odisha. ये जो होता है, ये जो कहाँ पाया जाता है? किंजौर डिस्ट्रिक्ट, जो कि ओडिशा में है. ओके. दिस कैन बी अ ज्योग्राफिकल क्वेश्चन ऑल्सो which UPSC can ask. Where is Kinjor district? It is in Odisha. So fresco paintings on rock shelter are in shape of half open umbrella. In this fresco painting यूज होती है कहाँ पे? रॉक शेल्टर पे, जो कि किस शेप पे होती है? हाफ ओपन अम्ब्रेला. मतलब हाफ ओपन, जैसे छाता होता है उसको हाफ ओपन कर देना, वो उस शेप में होती है. दैट इज हाफ ओपन अम्ब्रेला. सो दिस इज एन फ्रेस्को पेंटिंग. यू हैव टू रिमेंबर वेयर इट इज इन द रॉक शेल्टर. ओके. नाउ मोस्ट नोटिसेबल प्रिंटिंग इज रॉयल प्रोसेशन. ओके. Now comes the Jogimara cave paintings. Where it is located? Surguja district, Chhattisgarh. It is artificially carved out cave. ये एक artificially carved out cave है. ओके. मतलब ये artificially बनी है. इसका थीम क्या है? लव स्टोरी इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है लव स्टोरी? दैट इज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. इट इज एन थीम. What is the theme? Love story. And in what language it is written, or in with what script it is written? That is in Brahmi script. Okay. किस language में लिखी गई है? Brahmi script में. So best example of prehistoric painting. जोगीमारा cave painting है, वो best example है जोगीमारा का. क्या? This is prehistoric painting. Okay. Now next painting is Sitnavasul cave, that is Arivar Koil painting. Okay, it is found in the time of early Pandya period. Okay, ये early Pandya period की painting है. ये कहाँ पे located है? Pudukottai town, which is in Tamil Nadu. Pudukottai town, that is in Tamil Nadu. ये
रॉक आउट कट केव्स है जो कि किस लिए जानी जाती है? फॉर द पेंटिंग्स इन द जैन टेम्पल. दिस इज एन रॉक कट केव विच इज नोन फॉर पेंटिंग्स इन द जैन टेम्पल. व्हाट इज द थीम? जैन समवसना, दैट इज प्रीचिंग हॉल. सेंट्रल एलिमेंट इज पॉन्ड विथ लोटसेस. पेंटिंग्स कहाँ कहाँ पे होती हैं? जैसे वॉल पे, सीलिंग पे, पिलर्स पे. व्हाट इज समवसना? वेयर ब्यूटीफुल ऑडियंस हॉल वेयर तीरंदकारास डिलीवर सरमन्स. ओके, जहाँ पे एक ब्यूटीफुल ऑडियंस हॉल होता है जहाँ पे तीरंदकारास सरमन को डिलीवर करते हैं या फिर बोलते हैं. Now comes the Lepakshi painting. Okay, this is where it is located, Anantapur district, that is in Andhra Pradesh. ये कब बनाई गई थी? Made during Vijayanagara Empire. What is the theme? Ramayana, Mahabharat, incarnation of Vishnu, Hindu mythology. Where it is executed? ये कहाँ पे बनाई जाती है? ये है वीरभद्रा टेम्पल वॉल्स जो कि लेपाक्षी में. यू कैन सी दिस ऑल्सो. ये लेपाक्षी की जो वीरभद्रा टेम्पल वॉल है वहां पे ये बनाई गई है. ये काफी लो क्वालिटी की होती है. नाउ कम्स द मिनिएचर पेंटिंग्स. ओके, दीज आर स्मॉल एंड डिटेल पेंटिंग्स. मतलब ये काफी छोटी और काफी डिटेल में होती हैं. मतलब पेंटिंग्स के साथ लिखा भी होता है. ओके, ये कहाँ पे है? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन में पाई जाती हैं. What are the two prominent schools of this miniature painting? Pala School of Art and Apabrahma School of Art. पहले हमने पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस किया. अब हम बात करते हैं क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया की. संगीत नाटक अकेडमी ने 8 डांसेस को रिकॉग्नाइज किया है. कौन कौन से डांसेस हैं? भारतनाट्यम, कथकली, कथक, सत्रिया, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम. ओके, इवन कल्चरल मिनिस्ट्री ने जो छौ है उसको भी क्लासिकल लिस्ट में इंक्लूड किया हुआ है. सो दीज डांसेस रिप्रेजेंट अ यूनिटी ऑफ कोर आइडिया इन अ डाइवर्सिटी. जो ये डांसेस है वो यूनिटी को डिफाइन करते हैं. मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं, जैसे उसके स्टाइल को, उसके कॉस्ट्यूम को और उसके एक्सप्रेशन को. नाउ क्लासिकल डांस. सो जो क्लासिकल डांस है, इंडियन क्लासिकल डांस है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. जैसे टांडवा जो कि मूवमेंट और रिदम को डिफाइन करता है. सेकेंड इज लास्या विच डिफाइन ग्रेस, भावा एंड रासा. मतलब ब्यूटी को डिफाइन करता है, कैसे एक्सप्रेशंस हैं उसको लास्या डिफाइन करता है. टांडवा किसको? जैसे कैसे मूवमेंट है, कैसे जैसे डांस में हैंड्स चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, कैसी रिदम है, वो उनको टांडवा डिफाइन करता है. ओके, सो इंडियन क्लासिकल डांस और शास्त्रीय नृत्य. ओके, this is an umbrella term for various performance art rooted in religious Hindu musical theater style. So जो ये 3 मेन कंपोनेंट्स है, जैसे नाट्य. सो ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि वेरियस परफॉर्मेंस में यूज होता है. ओके, विच इज आर्ट रूटेड इन रिलीजियस हिंदू म्यूजिकल थिएटर. ओके, जो कि एलिमेंट ऑफ डांस को, ड्रामेटिक एलिमेंट ऑफ के डांस को दिखाता है, जैसे कैरेक्टर को डिफाइन करता है. अब आता है नृत्य. ओके, जो कि मूवमेंट्स को डिफाइन करता है, जो कि बेसिक फॉर्म है. अब आता है नृत्य. ओके, जो कि एक्सप्रेशन कंपोनेंट है. ओके, कैसे मुद्रास है, कैसा हाथ जा रहा है, कैसे जेस्चर है, इसको डिफाइन करता है. सो द 9 रासास कौन कौन से हैं? लव, हीरोइज्म, पाथोस, ह्यूमर, एंगर, फियर, डिस्गस्ट, वंडर एंड पीस. जो ये 9 रासास हैं. ओके, सो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ दिस आर्ट can be traced to the Sanskrit text, that is Natya Shastra. So the Natya Shastra was written by who? Bharat Muni. The Natya Shastra is the foundational treatise for classical dance of India, and this text is attributed to the ancient scholar known as Bharat Muni. जो नाट्य शास्त्र है उसको भारत मुनि ने लिखा है, जो कि ये
प्रोमिनेंट जो कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो कि डिफाइन करता है इंडियन एसिस्टेंस को, ओके, और स्टैब्लिश करता है डांस कैरेक्टरिस्टिक्स को, ओके। पहला क्लासिकल डांस है भारतनाट्यम। ये एक ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि डिराइव्ड हुआ है नेम फ्रॉम मीन्स डांस इन तमिल, ओके, भारत मुनि, ओके, द डांस इन तमिल को नाट्यम कहा गया है, ओके। सो ऑरिजिन ऑफ दिस डांस इज ट्रेस्ड टू द सोलो डांस परफॉर्मेंस, मतलब एक ये अकेले कोई करता है, ओके, और सोलो performance of Devadasis means a lady perform this dance, whereas Devadasis is known as temple dancers in Tamil Nadu. So modern stage production incorporated technical performance, pure dance based on non-religious ideas based on fusion theme, means जो ये मॉडर्न स्टेज प्रोडक्शन जैसे जैसे मॉडर्न होता गया सोसाइटी, जैसे जैसे टेक्निकल होती गई चीज़ें, वैसे ये परफॉर्मेंस में भी टेक्निकल चेंजेस आए, ओके। जैसे प्योर डांस को नॉन रिलीजियस आइडियाज से फ्यूजन थीम में इंक्लूड किया गया। अब कुछ आर्टिस्ट हैं जैसे रुक्मणी देवी, अरुणले, बाल सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति। नाउ कम्स अप कुचिपुड़ी। ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? कुचिपुड़ी, दैट इज अ विलेज इन आंध्र प्रदेश। इट इज लार्जली डेवलप्ड एज हिंदू गॉड कृष्णा ओरिएंटेड वैष्णविज्म ट्रेडिशन। इट इज रिसाइटल बेस्ड ऑन भागवत पुराना, हैज अ सर्कुलर थीम। इसकी थीम क्या है? भागवत पुराना, ओके। ट्रेडिशनल कुचिपुड़ी परफॉर्म्ड बाय ऑल मेल्स trope, okay. So lasya and tandava are the important elements in kuchipudi dance form, okay. So vocal and instrumental kinetic music in the Telugu language accompanies the परफॉर्मेंस। जो वोकल और इंस्ट्रूमेंटल है वो काइनेटिक म्यूजिक में को डिफाइन करता है इसमें, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में परफॉर्म की जाती है। इसके टिपिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? मृदगम, cymbals, veena, flute, tambura, and Lakshmi Narayan Shastri brought renown to Kuchipudi dance form. Now comes the Kathakali. It is an Hindu performance art in Kerala. Katha means here is a story and Kali means drama. What is the theme of this? Traditional theme क्या है? Folk mythologies, religious legends, spiritual ideas. Okay. From Hindu epics and Puranas. Hindu epics means Ramayana, Mahabharata, etc. So it depicts internal conflict between God and evil in most of this presentation. Means जो ये कथकली होता है वो एक भगवान को और किसी इवल पर्सन को, ओके, दिखाता है, मतलब दुष्ट आदमी, ओके, जैसे राम और रावण की स्टोरी भी इसमें आ सकती है। अब वोकल परफॉर्मेंस इन संस्कृत मलयालम, ओके, मीन्स जो वोकल परफॉर्मेंस है वो संस्कृत से डिफाइन होती है, जो कि मलयालम में हो सकती है। मलयालम के जो कई शब्द हैं वो संस्कृत वर्ड से बने हुए हैं, ओके। सो परफॉर्म्ड इन ओपन थिएटर या फिर टेम्पल प्रेमिसेस में होता है। सो ब्रास लैम्प इज यूज्ड फॉर लाइटनिंग हियर। नाउ कम कथक। So attributed to Asian northern India known as कथकारास और स्टोरी टेलर्स। ये एक नॉर्दर्न इंडिया का डांस है जो कि एशियन में डिफाइन किया गया है। जैसे कथाकारस मतलब जो कि स्टोरी टेलर्स होते हैं उसको डिफाइन किया है इस डांस ने। सो ये एक ट्रेडिशनल डांस है, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। During Mughal times, it is influenced by Islamic feature, especially in costume style and dancing style. ये इस्लामिक फीचर को डिफाइन करता है जो कि मुगल टाइम से आया हुआ है। ये जैसे कैसे डिफाइन करता है इस्लामिक फीचर को? उसके कॉस्ट्यूम से और उसके डांसिंग स्टाइल से। सो कॉमनली आइडेंटिफाइड विद द कोर ट्रेडिशन इन नॉर्थ इंडिया। कथक इज फाउंड इन 3 distinct forms called घरानास, named after cities where Kathak dance tradition evolved: Jaipur, Banaras, Lucknow.
So main feature of Kathak recital is Jugalbandi. Jugalbandi is means competitive play between dancer and tabla player. Means एक competition होता है किसके बीच, जुगलबंदी किसे कहते हैं, competition between dancer and a tabla player. Now Kathak based on Hindustani music and accompanied by Dhrupad music. So main proponents are Lacha Maharaj, Shambhu Maharaj, Birju Maharaj. So these are the most important person of Kathak: Lacha Maharaj, Shambhu Maharaj and Birju Maharaj. Now come Odissi. It derives its name from Oda Nitya, means Natya Shastra, mudras and postures for expressing emotions. ओके जो उसके मुद्रास और जो पोस्चर होते हैं, जो स्टाइल होता है डांस को, वो इमोशन को एक्सप्रेस करता है. सो 3 बैंड फॉर्म ऑफ डांस और त्रिभंगा. जो 3 बैंड्स होते हैं इस डांस में उन्हें त्रिभंगा कहा जाता है. त्रिभंगा पोस्चर, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ओडिसी डांस. व्हाट इट एक्सप्रेस, ये क्या एक्सप्रेस करता है, रिलीजियस स्टोरी, स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ Vaishnavism, that is Vishnu as Jagannath. Odissi dance music is Hindustani. So what are the elements of Odissi? Magla Charan, that is a beginning of the dance. Bhattu Nitya, that is a dancing. Okay. Pallavi, it includes facial expression and representation of the song. Now the last is Tharijam, that is a pure dance before the conclusion. ओके ये पूरा डांस होता है कंक्लूजन से पहले का. नाउ सो इट इज ऑल अबाउट द ओडिसी. नाउ कम्स सत्रिया और सत्रिय नृत्य. इट इज ऑरिजिनेटेड इन ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम. इट इज अ डांस ड्रामा परफॉर्मेंस आर्ट विद इन ऑरिजिन्स इन द कृष्णा सेंटर वैष्णविज्म मॉनेस्ट्रीज ऑफ असम. ओके मीन्स ये जो है डांस परफॉर्मेंस वो कृष्णा सेंटर्ड होता है, जो कि वैष्णविज्म को डिफाइन करता है, जो कि एक मोनेस्ट्री है असम की. सो इट इज एट्रीब्यूटेड टू द 15th century भक्ति मूवमेंट स्कॉलर एंड 16th महापुरुष श्रीमंता शंकर देव. ओके नाउ इट फोकसेस मोर ऑन डिवोशनल एस्पेक्ट ऑफ dance. It narrates mythological stories of Vishnu. Dance form is performed in a group by male monks known as bhoktas. Bhokats as a part of daily rituals. So khol and flute, these are the main instrument played in Satriya dance. कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं सत्रिया डांस में? खोल एंड फ्लूट. Now comes the Manipuri dance. It is also known as Jagoi dance, one of the major Indian classical dance form. ये कहाँ से origin हुआ है? ओके कहाँ पे origin हुआ है? That is in मणिपुर. ओके इसकी थीम क्या है? हिंदू वैष्णविज्म एंड एक्सिक्यूट परफॉर्मेंस ऑफ लव which is inspired dance drama of राधा कृष्णा called रास लीला. इसकी थीम क्या है? हिंदू वैष्णविज्म एंड रास लीला which is of राधा कृष्णा. Now comes the Mohiniyattam. It is a dance of Kerala. Mohini means beautiful, Attam means dance. It is a solo dance performance, incorporates Lasya and Tandava style. It narrates the story of the feminine dance of Vishnu. अब आता है folk dances of India. Okay, the multitude of folklore, legends and myth prevalent in various parts of India, combined with local song and dance tradition, result in a rich mix of composite art. Means ये local song या local dance के tradition को आगे बढ़ाता है. Okay, performed by the masses without any formal training. मतलब ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ परफॉर्म किया जाता है, बट इसमें कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है. Okay, so remain confined to certain sector of people or a particular locality. Now first folk dance is Chhau. So it is the word which originated from Chhaya, means shadow. ये जो डांस है वो किस वर्ड से बना है? छाया, जिसका मतलब होता है शेडो. ओके
सो ये एक फॉर्म ऑफ मास डांस होता है जो कि विग्रस मार्शियल मूवमेंट यूज होते हैं इसमें और नरेट करता है मैथोलॉजिकल स्टोरीज को। सो ये 3 मेन स्टाइल्स में होता है डांस। साराकेला छाऊ, दिस इज इन झारखंड। मायूरभंज छाऊ, दिस इज इन ओडिशा। पुरुलिया, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। सो 2011 में यूनेस्को ने छाऊ को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में डिफाइन किया है। नाउ कम्स द कलबेलिया। ये एक सेंट्रल फोक डांस होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है वुमेन ऑफ कलबेलिया कमेटी ऑफ राजस्थान। ओके, ये कलबेलिया कमेटी जो कि राजस्थान की है उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ओके, इसमें जो कॉस्ट्यूम और डांस मूवमेंट होते हैं वो एक सिमिलर होते हैं सरपेंट से। ओके, सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है दैट इज यूज इज बीन। ओके, जो कि एक विंड इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि स्नेक चेन के लिए यूज होता है। बीन तो नाम सुना होगा आपने, मतलब जैसे स्नेक को नहीं होता है, स्नेक के लिए यूज होता है। ओके, दिस इज सिमिलरली यूज्ड हियर आल्सो। सो यूनेस्को ने 2011 में कलबेलिया डांस को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इंस्क्राइब या डिफाइन किया है। नाउ द नेक्स्ट इज क्लासिकल म्यूजिक। ये जो होते हैं वो 2 मेन ट्रेडिशन होते हैं क्लासिकल म्यूजिक जो कि डिफाइन है इंडिया में। पहला है कार्नेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इंडिया में, दैट इज कार्नेटिक म्यूजिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक। ओके, सो जो कार्नेटिक म्यूजिक होता है वो मेनली पेनिनसुलर रीजन और हिंदुस्तानी म्यूजिक जो होता है वो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल रीजन में पाया जाता है। Okay, these are Carnatic music. Where it is found? It is found in peninsular regions. Hindustani music is really found in northern and central region. हिंदुस्तानी म्यूजिक जो कि होता है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है किससे, बाय एशियन हिंदू म्यूजिकल ट्रेडिशन से, और ये जो होता है काफ़ी इनरिच, काफ़ी महत्व होता है बाय द पर्शियन परफॉर्मेंस प्रैक्टिसेस ऑफ द मुगल्स। Now the first one is Hindustani music. ये एक historical root of both the music types belong to भारत नाट्य शास्त्र, they derived in the 14th century। जो ये हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो नॉर्थ इंडिया में पाया गया है, कब, इन द 13th and 14th century। It focuses more on the musical structure and possibility of improvisation in India। ये किस पे फोकस करता है, म्यूजिकल स्ट्रक्चर और कोई कैसी पॉसिबिलिटीज होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए। सो इसमें 10 स्टाइल ऑफ सिंगिंग यूज होती है जैसे द्रुपद, धामर, होरी, ख्याल, तापा, चतुरंग, रगसागर, तरना, सरगम एंड ठुमरी। अब हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर भी और भी फॉर्म्स होते हैं। पहला है ध्रुपद। ये एक ओल्डेस्ट और ग्रैंडेस्ट फॉर्म है। ओके, जो कि मेंशन करता है, जो कि मेंशन है नाट्य शास्त्र में भी। सो इट इज ए जेनिथ इन द कोर्ट ऑफ अकबर। ये कोर्ट ऑफ अकबर में भी पाया गया था। सो अकबर एम्प्लॉयड एंड पैट्रोनाइज म्यूजिकल मास्टर्स। अकबर ने अपने कोर्ट में कुछ म्यूजिकल मास्टर्स को एम्प्लॉय दिया या फिर रखा। ओके, जैसे बाबा गोपाल दास, स्वामी हरिदास एंड तानसेन। नाउ कम्स द नेक्स्ट इज ख्याल। दिस इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द पर्शियन। इसका मतलब क्या होता है, आइडिया और इमेजिनेशन, ख्याल। ओके, दिस इज अ वर्ड ओनली। ख्याल मतलब आइडिया या फिर इमेजिन करना किसी चीज को। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ स्टाइल which was attributed to Amir Khusrau. Okay, form is popular among artists. Improvisation, इसमें improvisation के ज़्यादा scope होता है। Okay, based on repertoire of short songs ranging from 2 to 8 lines. ये 2 से या 8 lines का होता है। अब किराना घराना, okay, जो कि नायक गोपाल founded it, but the real credit of making this popular lies with Abdul Karim Khan and Abdul
वहीद खान। जो किराना घराना है वो नायक गोपाल द्वारा फाइंड किया गया था, बट जो इसका मेन क्रेडिट, जो इसका रियल फाउंडर्स हैं, वो अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान हैं, जो कि मेनली 20th सेंचुरी से हैं। नाउ किराना घराना इसका इसलिए फेमस है, कंसर्न टूवर्ड्स प्रिसाइज ट्यूनिंग, एक्सप्रेशन ऑफ नोट्स, और इसमें कौन कौन से लोग फेमस हैं, जैसे पंडित भीमसेन जोशी एंड गंगूबाई हंगल। Now comes the Thumri under Hindustani music. So it is a mixed raga which is commonly considered to be semi-classical Indian music. ये कंपोजिशन किसका है? रोमांटिक और डिवोशनल दोनों का। ये इंस्पायर किससे है? भक्ति मूवमेंट, जो कि एक टेक्स्ट यूज होता है यूजली किस लिए? रिवॉल्व अराउंड द गर्ल्स लव फॉर कृष्णा। ये भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर है और एक ये डिफाइन करता है जो कि गर्ल्स लव फॉर कृष्णा। ओके, सो लैंग्वेज ऑफ कंपोजिशन इज हिंदी डायलेक्ट, अवधी डायलेक्ट एंड ब्रज भाषा। ओके, लैंग्वेज कौन कौन सी यूज है? हिंदी, अवधी एंड ब्रज भाषा। नाउ कार्नेटिक म्यूजिक, इन दिस म्यूजिक इज कीर्ति बेस्ड। ओके, जो ये म्यूजिक होता है वो कृति बेस्ड होता है, जो कि फोकस करता है मोर ऑन साहित्य और लिरिक क्वालिटी के म्यूजिकल पीस पे। ओके, अब कृति जो होता है वो हाईली इवॉल्व होता है म्यूजिकल सॉन्ग, जो कि सर्टेन रागा या फिर फिक्स्ड ताला या फिर रिदमिक साइकिल पे इवॉल्व होता है। ओके, या फिर डिफाइन करता है, या किसी केस क्या डिफाइन करता है? किसी रागा को या फिर किसी रिदमिक साइकिल को। ओके, ये जो कार्नेटिक म्यूजिक है वो कैसे प्लेड किया जाता है? विथ मृदगम। ओके, विच इंस्ट्रूमेंट? मृदगम इज यूज्ड हियर। Let us discuss about the difference between both of the classical music, Hindustani music and the Carnatic music. So, where it is practiced? Hindustani music is practiced in northern India, which is in the parts of Karnataka and Andhra Pradesh. Okay, even Carnatic music is in southern India. Okay, now ये कैसे कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है? अरब, पर्शियन एंड अफगान से। और कार्नेटिक म्यूजिक कहाँ से इन्फ्लुएंस है? इट इज एन इंडिजीनियस, मतलब मोर एंड मोर मासेस आर इन्वॉल्व इन दिस। नाउ there are several sub-styles which are divided into different gharanas. Means these sub-styles are divided into gharanas in Hindustani music. Okay, now Carnatic music, only one particular prescribed style of singing is there. Okay, no sub-style is there. Now there is a lot of scope of improvisation for the singers. हिंदुस्तानी म्यूजिक में इम्प्रोवाइजेशन के चांसेस होते हैं सिंगर्स के लिए। सो इसके कई वेरिएशंस हैं, और जो कार्नेटिक म्यूजिक है इसमें काफ़ी कम चांसेस होते हैं इम्प्रोवाइजेशन के। हिंदुस्तानी म्यूजिक में कितने रागास होते हैं? 6 रागास। कार्नेटिक में 72 रागास। ओके, नाउ जो हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है उसमें कितना टाइम लगता है? दैट इज एडरेंस टू टाइम। सो कार्नेटिक म्यूजिक में कोई एडरेंस नहीं होता है टाइम का, इट डज नॉट गिव एडियर टू टाइम। ओके, सो जो हिंदुस्तानी में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं वोकल के बराबर। ओके, दे आर सिमिलरली इम्पॉर्टेंट एज वोकल्स। इवन इन कर्नाटिक म्यूजिक दे आर मोर एम्फसाइज ऑन वोकल म्यूजिक देन ऑन इंस्ट्रूमेंट। कार्नेटिक म्यूजिक में वोकल म्यूजिक पे मोर इम्पॉर्टेंस दी जाती है, जैसे मेनली इंस्ट्रूमेंट पे नहीं इतनी दी जाती है इसमें। सो हिंदुस्तानी म्यूजिक में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? जैसे तबला, सरंगी, सितार, संतूर, फ्लूट एंड वायलिन। कार्नेटिक में कौन से इंस्ट्रूमेंट? वीणा, मृदगम, मैंडोलिन, फ्लूट एंड वायलिन। नाउ द नेक्स्ट इज पपेट्री। ये काफी पहले से ही इट्स बीन अ लॉन्ग बीन ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिया। इसमें काफ़ी इंटरेस्ट पहले से रहा है इंडिया का। ये एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस दोनों के लिए होते हैं। जो ये कहाँ पे एग्जीबिशन साइट कहाँ पे पाए गए थे? जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो में भी इनको पाया गया था।
okay, that is yielded puppets with socket attached to them, okay, which suggests the presence of puppetry as an art form. हड़प्पा मोहनजोदारो साइट पे भी ये पाए गए थे। इसमें ये हुआ था कि तब के समय भी पपेट्री यूज होती थी एज एन आर्ट फॉर्म। अब ये एक ओल्डेस्ट रिटन रेफरेंस है टू पपेट्री हैज बीन फाउंड एट तमिल क्लासिक, दैट इज शिल्पा दी करम रिटन, ओके। शिल्पा दी करम जो है वो तमिल क्लासिकल है, वो जो है वो रिटन रेफरेंस है पपेट्री का, जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी बीसी में पाया गया था। सो ऑल्दो पपेट्री हैज फाउंड रेफरेंसेस इन माइथोलॉजी एंड आर्ट, but due to lack of devoted audience and financial insecurities, there has been steady decline in this art form. अब काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, बट काफ़ी लोगों का था, बट इसमें जो इनकी ग्रोथ में जो डिक्लाइन था उसका रीज़न क्या था? लोगों का इंटरेस्ट ना होना और काफ़ी फाइनेंशियल जो थी उनको मदद नहीं मिल पा रही थी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थी। नाउ फर्स्ट इज स्ट्रिंग पपेट्स। These are the puppets which is chiseled out of wood. ये wood के बने होते हैं और 9 इंच मिनिचर्स होते हैं, 9 इंच के होते हैं। So oil color is used to paint the wood to skin color. Oil color कौन सा यूज होता है? ठीक है, जो कि wood से स्किन कलर को बनाता है, ओके। और पेंट फीचर्स कैसे होते हैं? जैसे आईज को पेंट करता है, नोज को, एक्सेट्रा, ओके। सो स्ट्रिंग जो होती हैं काफ़ी अटैच होती हैं स्मॉल होल्स इन द हैंड्स, हेड एंड बैक ऑफ द बॉडी, जो कि कंट्रोल होती हैं बाय द पपेटर। सो मिनिचुअर ज्वेलरी अटैच होती है किससे? टू गिव पपेट्स अ रियलिस्टिक फीलिंग, ओके। अब जो काफ़ी ज्वेलरी भी उनको पहनाई जाती है जिससे रियल फॉर्म आ सके, रियल फीलिंग आ सके, ओके। सो एग्जाम्पल कैसे है? कठपुतली, कुंदई, गोम्यता एंड बोमा लटम। Now next is shadow puppets. अब इस इमेज में भी आप देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि शेडो पपेट्स होते कैसे। इवन यू हैव सीन दिस। सो ये एक फ्लैट फिगर होते हैं जो कि लेदर से बनते हैं। These are a flat figures cut of leathers. So these are painted on both sides of the leather. इन्हें दोनों साइड से पेंट किया जाता है लेदर को, ओके। सो puppets are placed on a white screen with light falling from behind to create a shadow effect on the screen. मतलब इन puppets को एक white screen पे रखा जाता है, उसमें लाइट को लाया जाता है या फिर लाइट फॉल होती है जिससे शेडो बन सके स्क्रीन पे, व्हाइट स्क्रीन पे शेडो बन सके, तो इससे प्ले होता है, ओके। सो द फिगर्स आर मैनिपुलेटेड सच दैट द silhouettes created on the blank screen create a telling imagery. मीन्स जो ये पपेट्स है स्क्रीन पे जब रखे जाते हैं तो इससे ये हो सके कि एक स्टोरी बन सके। सो एग्जाम्पल कैसे क्या है? थोलू बुमुलटा, रावण छाया, तुगलू एंड गोम्यता। नाउ नेक्स्ट इज ग्लोव पपेट्स। द पपेट्स आर worn on the hand of the puppeters like gloves. जो इसमें जो शो मेनली कर रहा है, जो प्रेजेंटेशन कर रहा है, वो जो होता है वो ग्लव्स पहने होते हैं। जैसे ग्लव्स को इंसान पहना होता है ना, वैसे ये पपेट्स को पहने होते हैं और उन्हें परफॉर्म करा रहे होते हैं, ओके। द पपेटर wore them as a gloves and make them perform at the stage. So puppeteer manipulates the puppet using his index finger or thumbs. जो पपेटर होता है वो अपनी इंडेक्स फिंगर या फिर थंब को यूज करता है टू मेक देम परफॉर्म एज द पपेट। सो परफॉर्मेंस आर अकम्पनीड बाय रिदमिक बीट्स और ढोलक। जो परफॉर्मेंस होती है उसमें काफी रिदमिक बीट भी डालते हैं या फिर ढोलक का यूज भी होता है। अब एग्जाम्पल क्या है? पावा कुथू। Now comes the rod puppets. You can see the image also. These are the variation of hand puppets, okay, and are popular in Eastern India. ये एक variation है hand puppet का और ये कहाँ पे popular है? Eastern India में. So these are accompanied by rhythmic beats or dholaks. What are the examples? Yamapuri and Putul Nach. Now next is martial arts. First is Kalarpayattu. ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म है मार्शल आर्ट का इंडिया में, जो कि केरला में फाइंड किया गया इन 4th सेंचुरी
एडी। इसका ओरिजिनेशन कहाँ हुआ? केरला में 4th सेंचुरी एडी में। अब कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं? उछीछल और द मसाज विद गिंगली ऑयल, ओके, ओटा मायोपोटी और बॉडी एक्सरसाइज। जैसे मसाज विद गिंगली ऑयल यूज होता है टेक्निक्स, जैसे बॉडी एक्सरसाइजेज यूज होती हैं, शॉर्ट फाइट जिसे पुलियनकन कहते हैं, और पेयर हैंडेड फाइट जिसे विरम कई कहते हैं। ओके, सो जो ये आर्ट है वो एक अनआर्म्ड सेल्फ डिफेंस होता है, जिसका मेन मोटो होता है टू अचीव फिजिकल फिटनेस टुडे, ओके, विच इज यूज्ड इन ट्रेडिशनल रिचुअल्स और सर्मनीज। इसे ट्रेडिशनल रिचुअल्स या सर्मनीज में यूज किया जाता है। So it include mock duels, which is an armed and unarmed combat. Okay, now physical exercises are the main style of fighting here. So it is not accompanied by drumming or song. इसे drumming या फिर किसी song से नहीं perform किया जाता है। Okay, अब ये एक important है, important किया है इसमें footwork, जैसे kicks को, strikes को, weapon को use किया जाता है based on practices. Now next is Silambam. It is a kind of staff fencing जो कि तमिलनाडु में फाइंड की गई, या ओरिजिनेशन जो हुआ इसका तमिलनाडु में हुआ। ये एक मॉडर्न एंड साइंटिफिक मार्शल आर्ट है। ओके, सो दिस आर्ट आल्सो ट्रैवल टू मलेशिया। ये जो आर्ट फॉर्म है ये मलेशिया भी गया। इट इज आल्सो ट्रैवल टू मलेशिया। सो इट इज अ फेमस स्पोर्ट अपार्ट फ्रॉम अ सेल्फ डिफेंस टेक्निक। इसे एक स्पोर्ट भी माना गया है। सो फॉर मॉक फाइटिंग एंड सेल्फ डिफेंस इट इज अ लॉन्ग स्टाफ टेक्निक। ओके, मेनली लॉर्ड मुर्गा, it is in Tamil mythology, and Sage Agastya are credited with the creation of Silabam. मेन क्रिएटर्स कौन कौन से हैं इसके? लॉर्ड मुर्गा जो कि तमिल मैथोलॉजी में डिफाइन है, और अगस्त्य सेज। ओके, सो ड्यूरिंग वैदिक एज ट्रेनिंग वॉज इम्पार्टेड टू यंग मैन एज अ रिचुअल फॉर एन इमरजेंसी। सो जो वैदिक एज में था उसमें पहले से ही मतलब यंग मैन को ट्रेनिंग दे दी जाती थी एज अ फॉर्म ऑफ रिचुअल और इमरजेंसी पर्पस के लिए। नाउ कम्स द थंगता एंड सरित सरक। ओके, सो इट इज मेनली ऑरिजिनेटेड और क्रिएटेड बाय द मेलाइट पीपल ऑफ मणिपुर। ओके, हियर थंग रिफर्स टू द स्वॉर्ड, ओके, मतलब तलवार। ओके, एंड द तार रिफर्स टू अ स्पीयर एंड armed martial art. Okay, it is an armed martial art. Okay, so sarit sarak is an unarmed art form that uses hand to hand combat. Okay, with sarit sarak जो होती है वो इसमें कोई भी किसी भी तरह का आर्म्ड यूज नहीं होता है, इसमें बस हैंड्स यूज होते हैं फॉर फाइटिंग। ओके, so it is practiced in 3 different ways. First is it is ritualistic in nature linked with tantric practices. Secondly, mesmerizing performance of sword dances. Third is actual technique of fighting. First is ritualistic होता है नेचर में, इसमें तांत्रिक प्रैक्टिसेस यूज होती हैं फर्स्टली। सेकेंडली क्या होता है, इसमें तलवार का या फिर स्वॉर्ड का यूज होता है, और स्वॉर्ड डांसेस होते हैं जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। नाउ थर्डली एक्चुअल टेक्निक यूज होती है फॉर फाइटिंग। नाउ कम्स द कुतु वरसाई। ओके, इसका जो मेन ऑरिजिनेशन है, मेन प्रैक्टिस हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? साउथ इंडिया में, और ये पॉपुलर है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका और मलेशिया में भी। ओके, अब टेक्निक्स कौन सी होती है? ग्रैपलिंग, स्ट्रिकिंग, लॉकिंग टेक्निक्स इसमें यूज होती हैं। कुतु वरसाई का मतलब क्या होता है? एम्प्टी हैंड कॉम्बैट, मतलब खाली हाथ से लड़ना। ओके, अब ये जो होता है ये अनआर्म्ड द्रविडियन मार्शल आर्ट होता है। ओके, जिसमें एडवांस एथलेटिज्म और फुटवर्क यूज होता है थ्रू योगा, जिम्नास्टिक, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। सो इसमें एनिमल बेस्ड सेट्स भी यूज होते हैं जैसे स्नेक, ईगल, टाइगर, एलिफेंट एंड मंकी।
Now the last form is Shebi Garga. Its origination is in Manipur. ये कैसे फाइट होता है? स्वॉर्ड एंड सील से. इसमें जो लोग, यू कैन सी इन द फोटो ऑल्सो दैट हाउ द पीपल आर होल्डिंग द स्वॉर्ड एंड द शील्ड. सो ये कॉन्टेस्ट होता है जो कि 7 मीटर डायमीटर के सर्किल में होता है और फ्लैट सरफेस पे होता है. जो चेबी स्टिक होती है वो 2 to 2 फीट की होती है इन लेंथ में. ओके, सो जो विक्ट्री अचीव्ड होती है अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स अर्न ड्यूरिंग अ ड्यूल. ओके, मतलब जैसे दो प्लेयर हैं, जो जितने पॉइंट्स जीत लेगा वही विनर होगा. ओके, सो इसमें पॉइंट्स किस किस बेसिस पे दिए जाते हैं? स्किल्स पे और ब्रूट फोर्स पे. ओके, so it is all about the Indian art forms. Okay, so hope you understood this lecture. Thank you.